Now, there are 5 girls and 10 boys. ठीक है, there are 5 girls and 10 boys. How many combination of 6 people can be formed? Okay, when? And these are the conditions. सबसे पहले without condition, no condition, just have to form a team of 6 people. ठीक है, सबसे पहला है without condition. Second part is if it has no girl, there is no girl included in those 6 people. Next, if it has one girl, D part, 3 girls and 3 boys. ठीक है, let's try to understand the question. ठीक है, now we have a total of 15 people. उस 15 people में we know that there are going to be 5 boys, sorry, there are going to be 5 girls and 10 boys. Since there are 5 girls and 10 boys, I have to form a team of 6 people. ठीक है, आई हैव टू फॉर्म अ टीम ऑफ 6 पीपल. सबसे पहला बोला है विदाउट कंडीशन. तो ना एक काम करते हैं, विल कीप द विदाउट कंडीशन ऑन होल्ड फर्स्ट. ओके, यहाँ पे लेट्स कीप द विदाउट कंडीशन ऑन होल्ड फर्स्ट फॉर टाइम बीइंग. लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग दैट इज ऑब्वियस. अब क्या बोला है कि द आई हैव टू सेलेक्ट 6 पीपल. उस 6 पीपल में देयर शुड नॉट बी एनी गर्ल. अब मुझे पता है कि देर आर टोटल ऑफ 15 पीपल. 15 पीपल में देर आर गोइंग टू बी 10 बॉयज़, देर आर गोइंग टू बी 5 गर्ल्स. आई हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ 6 सच दैट देर इज़ नो गर्ल इंक्लूडेड. तो मेरा आंसर होगा कि आउट ऑफ 10 पीपल आई विल सेलेक्ट 6 पीपल एंड इट विल बी 10C6 ways. एनीबडी हैज़ एनी डाउट्स हियर? क्या कंडीशन बोला है? नो गर्ल. नो गर्ल मतलब विल आई कंसिडर एनी गर्ल फ्रॉम दोज 5 गर्ल्स? तो बेसिकली आई एम गोइंग टू कंसिडर ओनली द बॉयज़. हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर? 10. हाउ मेनी आई हैव टू सेलेक्ट? 6. तो आंसर क्या रहेगा? सेलेक्ट बोला, सेलेक्ट इज कॉम्बिनेशन. तो 10C6. एनी डाउट्स हियर? नेक्स्ट बोलो, देखो क्या, इफ़ इट हैज़ 1 गर्ल. गाइस, इफ़ इट हैज़ 1 गर्ल का मतलब होता है कि आउट ऑफ 5 गर्ल्स आई विल सेलेक्ट 1 गर्ल. And out of 10 boys, how many people will I select? 5. So this will become 5 into 10C5, that is 10C5 ways. Simple. Last में बोला है 3 girls and 3 boys. Total number of girls कितने? 5. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5C3 times 10C3. This is the answer. That's why I kept A for the last. Now if I tell you without condition, so what do you understand by without condition? All can be chosen out of 6 can be chosen out of everyone. 15C6. Bolo. There is no condition. What will you do when I said that there is no condition? No condition का मतलब क्या होता है पता है क्या? I have to select 6 people. Now let's try to understand. Let's do by this method so that our concepts become more clear. Let's do it like this. कि अगर मैंने 5 गर्ल्स में से 0 गर्ल्स को सेलेक्ट किया तो 10 बॉयज़ में से कितने बॉयज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं? 10C6 प्लस 5 में से अगर एक को सेलेक्ट किया तो 10C5 प्लस 5C2 इंटू 10C4 प्लस 5C3 टाइम्स 10C3 प्लस 5C4 टाइम्स 10C2 प्लस 5C5 टाइम्स 10C1 एंड लास्ट में कुछ आएगा क्या? क्यों नहीं? बिकॉज देर आर ओनली 5 गर्ल्स. देर आर ओनली 5 गर्ल्स.
अब 5 गर्ल्स में से 6 गर्ल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट. So this is the condition. Now can I write directly, if I have to solve, can I write it as out of 15 people I am going to select 6 people? It can be any of the conditions. अब मैंने इसको डिटेल्ड में क्यों लिखा है? बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल सो दैट यू नो दैट हाउ एम आई गोइंग टू राइट द कंडीशन. देयर आर नो गर्ल. फर्स्ट कंडीशन देखो एग्जैक्टली ये है. Look at the second condition, exactly here. Look at the fourth condition, this is exactly. So actually the second, third and fourth is nothing but a part of the first condition. That's why I wrote first condition सबसे last. So that gives you clarity कि मुझे 6 लोगों को select करने का in any ways. तो we have split it down so that it becomes clear to you. Has everybody understood this? You can. I wanted to make this easier. So that if it becomes this easier, becomes this, we understand it very nicely. अब कल जाके बोला कि 2 boys and 4 girls. 2 boys and 4 girls यहाँ पे आएगा 5C4 into 10C2. This has not been asked. So I wanted to cover all the conditions. कि एक बार लिख लेंगे तो आइडिया आ जाएगा कि how can we proceed with these kind of questions. Understood? चलो. Now, see, when we solve condition, say for example एक रेनबो का क्वेश्चन लेते हैं. कैन यू टेल मी रेनबो में कितना कलर्स रहते हैं? 7. याद कैसे रखते कलर्स? विबग्योर. चलो ठीक है, गुड. देयर इज अ रीजन व्हाई आई आस्क्ड YIBGYOR. ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे. ओके, नाउ I will, let's say a condition on rainbow colors, that is Vibgyor. Violet, उसके बाद क्या आता है? Indigo. उसके बाद blue, green, yellow, orange and red. याद रखो. अभी देखो मेरा क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन क्या बोलता है? Number of ways in which different colors can be arranged in a rainbow. Okay, can be arranged in a rainbow if blue and green are first part always together, second part never together. ठीक है, listen and look at these words. Always together. Doesn't matter what the question. समझो, I am telling you that there are 10 boys and 5 girls. पहले का क्वेश्चन, 10 boys and 5 girls. 2 girls are always together. 2 girls are never together. सेम क्वेश्चन हो, वही क्वेश्चन में हम लोग ऐड ऑन करेंगे बट बाद में करेंगे. 2 girls are always together. 2 girls are never together. No 2 girls are together. You have to understand कि what is the concept behind. अब we are focusing on always together. Now, we'll start with the question. कि क्या बोला है पता है क्या? ब्लू एंड ग्रीन. देखो ये है, blue and green are always together. Now think of it as like this. There are 7 people who are going together for an outing. You have your best friend along with you. You don't know anybody else. But since you have your best friend along with you, you and your best friend will always hang out together. मतलब तुम लोग साथ में रहोगे. मतलब you will be one group. Whenever they tell you always together, take that group as one term. मतलब I am going to take blue and green as one color. So what I am going to do is the first condition of always together. देखो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ. Always together में what we are going to do is take blue and green as one color. ठीक है. Therefore we have
1 2 3 4 5 6 we have 6 colors that can be arranged in 6 factorial ways, and the two colors blue and green that we took together can be arranged in 2 factorial ways. Did you guys understand this? देखो 2 factorial क्या आ गया, मैंने दोनों को साथ में लिया. अब मैंने साथ में कैसे लिया, मैंने या तो ब्लू ग्रीन को साथ में लिया या तो ग्रीन ब्लू को, टू 2 ways. सो ये 6 हो गया बिकॉज V is 1, I is 2, B and G is 3, Y is 4, O is 5 and लास्ट में R is 6. They can be arranged in 6 factorial ways. और जिसको साथ में लिया, अब किसी ने बोला कि ब्लू ग्रीन एंड येलो आर टुगेदर, जिसको साथ में लिया इनटू दैट फैक्टोरियल, 3 को साथ में लिया 3 फैक्टोरियल, 4 को साथ में लिया 4 फैक्टोरियल, 5 को साथ में लिया 5 फैक्टोरियल. सो इफ टेलिंग दैट 3 गर्ल्स आर टुगेदर इनटू 3 फैक्टोरियल आना ही है, 2 colors are together into 2 factorial 100% आना है. So we have to understand this, whatever you took together it has to be into 2 factorial. Therefore the answer is number of ways. Number of ways is going to be, guys, number of ways is this. देखो ध्यान से देखो, it is going to be 6 factorial into 2 factorial. How many of you have not understood this? Did everybody understand this? So when I tell you that these two girls are these two colors are together, whenever you take it as together, what we do is we multiply into that factorial. तो अगर 3 को साथ में लिया तो into 3 factorial. बट देखो नेक्स्ट क्या है, नेवर टुगेदर. अब नेवर टुगेदर कभी भी कंडीशन आएगा ना तो तुमको एक ही चीज़ करना है, इसका फॉर्मूला है कि नॉर्मल परम्यूटेशन माइनस ऑलवेज टुगेदर. नॉर्मल परम्यूटेशन माइनस ऑलवेज टुगेदर. कैन यू टेल मी इसका नॉर्मल परम्यूटेशन क्या रहेगा? 7 फैक्टोरियल. और ऑलवेज टुगेदर का आंसर क्या आया? 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे 7 फैक्टोरियल इज 50 40, 6 फैक्टोरियल इज 720, 720 माइनस 2 41440. डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? एनीबडी हैज एनी डाउट्स? कितने लोग को नहीं समझे? सो व्हेन आई सबट्रैक्ट दिस आई नो दैट लास्ट में 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा. दिस इज़ द नंबर ऑफ वेज. अब इस पर कितना भी कंडीशन आ सकता है. देर आर 10 बॉयज एंड 6 गर्ल्स. इन हाउ मेनी वेज कैन द गर्ल्स बी अरेंज सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर. अब नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या आएगा, सेम कंडीशन आई एम टेकिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. देर आर 10 बॉयज एंड 6 girls. Arrange in such a way that no 2 girls are together. Please focus on the word pattern. No 2 girls. ये 2 है. No 2 girls. अब थिंक ऑफ इट एज दिस मेथड. देखो ध्यान से देखो, किसका कंडीशन नहीं दिया है? बॉयज का कंडीशन नहीं दिया. तो सबसे पहले बॉयज को अरेंज कर दो. हाउ मेनी बॉयज आर देयर? दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज? 10 फैक्टोरियल. हाफ आंसर इज डन. जिसका कंडीशन नहीं दिया उसको गेट आउट करवा दो. किसका कंडीशन नहीं दिया? बॉयज का. देखो सबको अरेंज करने का, बट ये ध्यान रखने के लिए नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर. Girls should not come together. No 2 girls, no 3 girls. Girls should not come together. Can you tell me what do you understand by no 2 girls are together? Between them there is at least one boy. There must be somebody. It can be 1 boy, 2 boy, 3 boy, 4, anything. But they should not be together. देखो हम लोग कैसे करते हैं. See, understand this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक काम करते हैं यहाँ पे ले 10.
So 10 boys can be arranged in 10 factorial ways. Anybody has any doubts? अब मुझे बताओ गर्ल्स के लिए कितना स्पेस बाकी है? गर्ल्स के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है? गर्ल्स के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है? 11. लेट्स काउंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ये 11 स्पेस में कितने गर्ल्स को हमको अरेंज करना है? 11p6. कितने गर्ल्स को अरेंज करने का है? 6. तो 11p6. दैट्स द आंसर. बोलो, पूछो, किसको नहीं समझा? इफ आई अरेंज बिटवीन देम, हर 2 या 3, आई कैन कीप 1 गर्ल हियर, आई कैन पुट 1 गर्ल हियर, दैट्स फाइन. कितना पॉसिबल आउटकम्स है मेरे पास? 11 पॉसिबल जगह है. 11 पॉसिबल जगह में आई हैव टू अरेंज दिस 6 गर्ल्स, दैट विल बी 11p6 ways. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? ऑल्टरनेट नहीं बोला है, क्या बोला है? नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर. तो इसलिए जब मैंने बॉयज़ को अरेंज कर दिया, बॉयज़ का कंडीशन इज 10 फैक्टोरियल. अब बॉयज़ के आगे पीछे कितना टोटल कितना जगह है मेरे पास? 11 जगह है. अब उस 11 जगह में आई कैन अरेंज दिस 6 गर्ल्स इन 11p6 ways. प्लीज आस्क योर डाउट्स. Whatever you have not understood, please ask. Have you guys understood this? तो remember ना, words देखो, no 2 और no 3 girls. देखो no 2 girls आएगा. इसके पहले देखो never together. उसके पहले always together. So you have to understand कि which pattern में, which is the type of pattern that I'll be using, how am I supposed to solve the sum. ये same विबग्योर में रहेगा कि I will say that not विबग्योर, सॉरी, यही रहेगा when I am forming a group कि these 2 people should not be together. A should not be with B. अगर A B C D E F D है, अगर A should not be with B मतलब सेम A and B, no A and B should not be together. No 2 girls are together का सेम कंडीशन रहेगा. तो C D E F में जितना कंडीशन रहेगा, उसके बीच में आगे पीछे जितना जगह है, this is what we have to arrange. Has everybody understood this? Anybody has any doubts? So these are the kind of questions we need to focus on. If you have any problem, please ask. सब लोगों को समझा ये? yes or no? अब देखो नेक्स्ट. 6 men, 4 women, are forming a committee of 6 members. ठीक है, are forming a committee of 6 members. ठीक है, such that it has at most 2 women. Tell me, what do you understand by at most 2 women? Maximum 2 women. Tell me the answer. बोलो. 4c2 times 6c4 plus 4c1 times 6c5 plus 4c0 times 6c6. At most 2 women मतलब maximum 2 women बोला तुमने, तो मिनिमम कितना रहेगा? 0 women. तो what I am going to do is कि 4 women में से 0 को सेलेक्ट किया एंड 6 में से 6 को सेलेक्ट किया. 4 वुमेन में से 1 को सेलेक्ट किया, 6 में से 5 को सेलेक्ट किया, 4 में से 2 को सेलेक्ट किया, 6 में से 4 को सेलेक्ट किया. वेस. प्लीज़ आस्क योर डाउट, हूएवर हैज़ नॉट अंडरस्टूड. सब लोग को समझा? एट मोस्ट बोला है. एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 2, बट मिनिमम ध्यान रखो. नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मिस दिस पार्ट. दे विल नॉट राइट 4c0. देखो एट मोस्ट 2 बोला है, मिनिमम रेंज क्या है? 0 to 2 बोला है, मतलब 0 वुमेन, 1 वुमन एंड 2 वुमेन. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? नेक्स्ट. सेम कंडीशन. ओके, सेम क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन. 6 men 4 women
सेम कंडीशन है गाइस, ओके ठीक है. 6 men 4 women are form 6 men 4 women are forming a committee of, यहाँ पे 6 नहीं लेते, एक काम करते हैं इसको ना बढ़ा देते हैं. are forming a committee of 7 member where number of men, forming a committee of 7 member such the number of men should be greater than number of women. Number of men should be greater than number of women. Yes, competition. चलो इसको ना यहाँ पे ले लेते हैं ताकि it becomes easier for you to look at the question also. बताओ क्या लिखेंगे. सेम क्वेश्चन, मैंने सिर्फ हल्का सा 6 की जगह 7 कर दिया और मैं क्या बोला, नंबर ऑफ मैन शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ वुमेन. 7 ही लोग रहना चाहिए, बट दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड दैट नंबर ऑफ मैन शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ वुमेन. बोलो क्या लिखो. 66 times 4c1. सबसे पहले नंबर ऑफ मैन शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ वुमेन, मतलब अगर मैंने 6 मैन को सेलेक्ट किया तो आई कैन सेलेक्ट 1 वुमेन. यस नो. Yes. 7 लोग हो गए. यस. 6 + 1 7. आर द नंबर ऑफ मैन ग्रेटर देन नंबर ऑफ वुमेन. यस. नेक्स्ट 65 times 4c2. शाबाश. प्लस 64 times 4c3 प्लस हो गया. नहीं. क्यों नहीं? बिकॉज Greater. नेक्स्ट कंडीशन में इक्वल हो जाएगा. वेर और इक्वल नहीं हो सकता है बिकॉज मेरे को कितने लोग सेलेक्ट करना है. 7. अगर 6 होता था, अगर अभी किसी ने फॉर्म अ मेंबर ऑफ 6 तो इट वुड बी 6c5 4c1. अच्छा एक और चीज, नंबर ऑफ मैन शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ वुमेन. इज देयर एनी अदर कंडीशन दैट आई कैन राइट? 4c0. 4c0 लिख सकते क्या? क्यों नहीं लिख सकते? 7 चाहिए. वेरी गुड. 7 चाहिए ना, तो एक लोग थोड़ी घर से लेके आएंगे. 6 ही तो लोग हैं, तो 6 लोग में से 6 लोग को सेलेक्ट करेंगे. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वेर वी अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट. जैसे सेलेक्ट करेंगे, कितने लोग में से सेलेक्ट कर रहे हैं, कितना सेलेक्ट करना है. NCR. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? चलो नेक्स्ट वन. अब ना देर आर सर्टन रिमार्क्स दैट वी हैव टू राइट. ओके, द रिमार्क इज दिस. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड द रिमार्क. नंबर ऑफ वेज of selecting R people. R is a number, guys. Number of ways of selecting R people out of N people. Number of ways of selecting R people out of N people when P people are always included. ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो क्या है. N minus P CR minus P. फॉर्मूला. रिमार्क, आई एम गिविंग अ रिमार्क. क्या बोला मैंने? N लोग है, उसमें से R लोग सेलेक्ट करने का है. एंड think of it as 1 person is always included, 2 people are always included, 3 people are always included. ये है वो P. अब किसी ने बोला, मैंने जो अपने सम किया था that 1 person is included. included मतलब मैंने क्या बोला था? we did it by the same formula. तो this is the formula. N minus P. P is included वाला condition. N is number of people. R is कितने लोग को सेलेक्ट करें. So the formula is N minus P CR minus P. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट रिमार्क है. अब सेकंड रिमार्क. ओके, सेकंड रिमार्क. ओके, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट R people out of N people when P people are always excluded. सेम कंडीशन. हाँ, सेम कंडीशन. देखो मैं इसलिए ना मैं बोल के बताया. नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग देखो
ठीक है. एक्सक्लूडेड, ये है एक्सक्लूडेड का कंडीशन. ठीक है. अब कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी एक्सक्लूडेड कंडीशन? बताओ. n minus p c r. n माइनस पी सी आर, n माइनस पी सी आर, n माइनस पी सी आर, r माइनस पी नहीं आएगा, n माइनस पी सी आर. थिंक ऑफ इट एज समथिंग. दिस इज द कंडीशन वेर योर बेस्ट फ्रेंड विल बी इंक्लूडेड. This is the person that you don't like, that person will not be included. That's why n minus p condition same रहेगा, n minus p, n minus p c r minus p when included, n minus c r when the person is not included. Has everybody understood this? अब इसके ऊपर ना कंडीशन, एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे, we'll take a question that will make you understand कि क्वेश्चन बोलना क्या जाता है. ठीक है. कहाँ पे गया? हाँ. One दादाजी क्वेश्चन. दादाजी wishes to take his 7 grandchildren to the park. ठीक है. चलो, एक फैमिली है, देयर आर गोइंग टू बी 7 ग्रैंडचिल्ड्रन. दादाजी बोलते चलो पार्क में जाते हैं, थोड़ा खेलते खेलते चिल करते हैं. ओके. अब कंडीशन क्या है? देखो देखो, without taking the same 3 children together. So, groupism not allowed. Without taking the same 3 children together. लेके सबको जाएंगे, लेके सबको जाएंगे, बट 3 जो लोग हैं, 3 अगर ए बी सी पहले समझो, ए बी सी डी ई एफ जी. इफ ए बी सी हैज़ गॉन देन ए बी सी नहीं आएगा. सो क्वेश्चन क्या बोले? दादाजी विशेज टू टेक द 7 ग्रैंड चिल्ड्रन विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर. सबसे पहला, अभी देखो कंडीशन यहाँ पे चलते हैं. फर्स्ट कंडीशन, हाउ फ्रीक्वेंटली दादाजी गोज. पहला कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन, हाउ फ्रीक्वेंटली दादाजी गोज. बताओ. एक मिनट, ये मत रखो. सबसे पहला दूसरा कंडीशन है, तो ये तो बहुत ईजी है. हाउ फ्रीक्वेंटली ईच चाइल्ड गोज. हाउ फ्रीक्वेंटली ईच चाइल्ड गोज. बोलो. तो अब मुझे देखने का कि हाउ फ्रीक्वेंटली विल ईच चाइल्ड गो. बताओ. How many people can you take at one time? वही तो बोला है, टेकिंग विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन. 3 एक people. बार में 3. सेम 3 नहीं जाएंगे, बट 3 को लेके जाएगा. तो बोलो, हाउ विल वी डू इट? First he'll take 7C3. 7C3, then विच 3? Any 3. हाँ वही तो बोले ना, एनी 3. एनी 3 मतलब 7 ABC. चलो ए बी सी को, फर्स्ट 3 में ए बी सी आ गया. नेक्स्ट क्या सेलेक्ट करेंगे? 7 minus 3 C3. अब उसमें भी अगर ए बी सी आ गया तो उसके लिए -3 क्या? कौन सा 3? थिंक थिंक थिंक, आराम से थिंक, आराम से सोचो. इसलिए सब रिमार्क क्वेश्चन सब लिखा है. दादाजी विशेज टू टेक हिज 7 ग्रैंड चिल्ड्रन टू द पार्क विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर. हाउ फ्रीक्वेंटली ईच चाइल्ड गोज विदाउट टेकिंग ना, हाँ, विदाउट टेकिंग सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर. हाउ फ्रीक्वेंटली ईच चाइल्ड गोज. बोलो. हाउ फ्रीक्वेंटली ईच चाइल्ड गोज. बोलो. पहले 7C3 हुआ, फिर उसके बाद 4C3. See, understand the question. Without taking the same 3 children. वो exclude करना. Understand the English. You can take 2 children. Without taking the same 3 children. Without taking the same 3 children. Try to decode this. Without taking the same 3 children. 7C3 times 6C3 times.
try to understand. I'm not looking for answer. Try to understand the crux behind that line. अगर मैंने बोला कि ये 3 सब्जी मत खाओ एक साथ, तो तुम लोग क्या क्या सोच सकते हो उसके बारे में कि these are 3 vegetables, don't eat these 3 together. So you can eat the first one, or you can use the second one, or the third one. या तो फर्स्ट सेकंड खा सकते हैं, या तो फर्स्ट थर्ड खा सकते हैं, या तो सेकंड थर्ड खा सकते हैं, बट 1 2 3 नहीं खाएंगे. अब इसमें ना एक सोचो ना, अगर मैंने बोला है कि विदाउट टेकिंग सेम 3 चिल्ड्रन, if these are the 3 children and if I want to take them to the park, next time I can take 1 2 3, or I can take 1 2 3, I can exclude him, or I can exclude her, or I can exclude him. See, understand. Try to understand what has been asked. Without taking same 3 children, मतलब 1 person या तो include होगा या तो exclude होगा, whatever it is. तो थोड़ा आराम से बताओ और मुझे बोलो what can we write here. बोल बेटा. He can take 7 children in 7 factorial. 7 children in 7 factorial ways. But 7 factorial ways में 7 बच्चे क्यों जाएंगे साथ में? दादाजी का ध्यान कौन रखेगा फिर? दादाजी घूम गए तो बोलो क्या करेंगे? आराम से. बोलो. Whatever you feel. Say for example, अगर मेरे को 3 बच्चे लोग को लेके जाने का, any 3 kids if I want to take, any 3 kids if I have to take, how frequently each child goes? So you have to tell me how frequently will each child go? Every 2 times. Every 2 times. बोलो. अच्छा, जितनी बार एक स्पेसिफिक बच्चा जाएगा, समझो एक स्पेसिफिक बच्चा, जितनी बार एक स्पेसिफिक बच्चे को जाने का मन करेगा, उतनी बार दादाजी को बाकी लोग को भी एक्सप्लेन लेके जाना पड़ेगा. One specific person, if one person has to go, if one person has to go, if one person has to go, बाकी लोग को भी टैग अलोंग करना पड़ेगा. कि कंडीशन क्या है? विदाउट टेकिंग सेम 3 चिल्ड्रन. अभी अगर मुझे जाना है तो मेरे साथ दादाजी को 2 लोग को भी लेके जाना पड़ेगा. अगर मुझे जाना है तो आई एम गो विद दीज 2 फर्स्ट, फिर मैंने नेक्स्ट बोला मेरे को वापस जाना है तो आई कैन गो विद दीज 2. आई कैन गो विथ दीज 2 में से इसको छोड़ के इसी और के साथ. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है? आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R people out of N people when P people are always included. If I have to go every time, others will have to act. I am that P. Are you understanding? Without taking same 3 children में if I am that first group में मैं गया, can I go in the second group? But not with the same 2 people. Can I go in the third group? Yes, but not with the same 2 people. Can I go in the 7th group also? Yes, but what with the same 2 people? तो I am that P. Did you guys understand this? तो अब बताओ मेरा आंसर क्या रहेगा? 6C2. फॉर्मूला बेस बताओ क्या रहेगा? 7 7 minus 1 C 3 3 minus 1. तो फर्स्ट पार्ट का क्या रहेगा? 7 minus 1 C 3 minus, which is 6C2. How many of you have not understood this? See, what we feel is the same 3 children should not go. So what we do is, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया. ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या पूछा है. कीप 1 person constant and that 1 person can go as many times provided repeat नहीं होना चाहिए ग्रुप. तो if I have gone with A, B, C, I can go with ABD, ABE, ABF or ACD, ACE, ACF. बट अगर मैं उनके साथ एक बार गया तो मैं वापस नहीं जा सकता फिर. तो इफ यू कीप 1 person इंक्लूडेड तो बाकी सब चेंज हो सकता है. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट. हाउ फ्रीक्वेंटली दादाजी गोस? बोलो. हाउ फ्रीक्वेंटली दादाजी गोस?
7 7P3 होगा. P 7C3. C. 7C3 अरेंजमेंट के कॉम्बिनेशन combination. सेलेक्ट करें अरेंज करें. अरे बाहर जाने के लिए सेलेक्ट करेंगे ना, अरेंज के कंधे पे थोड़ी बैठाएंगे. तो कितने लोग हैं? 7. कितने लोगों को सेलेक्ट करने का है? C3. बट 7C3 इससे क्या होता है? If we दादाजी के बारे में पूछा ना. instead of 7 grandchildren we take 8 and then rather 8 ग्रैंड चिल्ड्रन कहाँ से लाया भाई? तो कहाँ से एक्स्ट्रा ग्रैंड चिल्ड्रन कहाँ से ला रहा है बेटा तू? देख मैं वापस बोला, यू नॉट गोइंग टू अज्यूम एनीथिंग, यू आर अज्यूमिंग. पीएनसी में अज्यूम करेंगे आंसर रॉन्ग होगा. वापस बोल रहा हूं मैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. हाउ फ्रीक्वेंटली दादाजी गोज, बोलो. तुम लोग 7C3 बोल रहे हैं, कैसा? दादाजी का कंडीशन है ही नहीं इसमें, बोलो. If one children goes 6 times, then he अच्छा, क्वेश्चन क्या दिया है? स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. दादाजी किसका विश है? दादाजी का. किसको लेके जाने का है? 7 grandchildren. ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. मैं वापस बोल रहा हूँ, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन कम से कम 3 to 4 टाइम्स. किसको जाने का है? किसको लेके जाने का बाहर? बच्चे लोगों को. कौन लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा? तो मुझे एक बात बताओ, अगर 7 में से तुम लोग 3 ग्रैंड चिल्ड्रन को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनके साथ जाएगा कौन? Always included. ऑलवेज इंक्लूडेड नहीं, कंपलसरी है. बच्चे लोग बाहर कैसे जाएंगे अकेला? आइसक्रीम खाने का रहेगा, पैसा किसके पास है? दादाजी के पास. 7C3 into 1. द कंडीशन इज एवरी टाइम अ चाइल्ड विशेस टू गो, दादाजी हैज टू गो. ही इज दैट वन फैक्टर दैट इज कॉमन. बच्चे चेंज हो जाएंगे आपस में, 7 कंडीशन में हो जाएंगे चेंज. दादाजी चेंज होंगे क्या? नहीं, देयर इज ओनली वन दादाजी. सो रिमेंबर दिस. नाउ हाउ फ्रीक्वेंटली दादाजी को हैज टू गो एवरी टाइम. कोई बोला मेरे को गार्डन में जाने गए, दादाजी हैज टू गो. देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? सो रीड द क्वेश्चन. ये पूरे डेटा इज गिवन इन द क्वेश्चन. दादाजी विशेस टू टेक 7 grandchildren. He cannot take the same 3 people. We always take the mindset कि 2 लोग को कांस्टेंट रखो, एक को सिंपल, एक को कांस्टेंट रखो, बाकी को चेंज करो. ऑलवेज इंक्लूडेड. नंबर ये याद रखो, ऑलवेज एक्सक्लूडेड ये याद रखो कि एक्सक्लूड कब कर सकते हैं. आई हैव जस्ट रिटन द कंडीशन टू. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? इसलिए बोलता ना, द मोर यू रीड द क्वेश्चन, द मोर यू सॉल्व द क्वेश्चन, द ईजियर इट विल बिकम फॉर यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, ये बोट है, ऊपर से ड्रोन से हम लोग ने एक बोट देख रहे हैं, पानी वानी सब देख लेना अपने आप. ये है उसका व्हील जो घुमाते हैं. ठीक है, याद रखो ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेटा. ठीक है, ठीक है. बोर्ड बनाया एंड 8 oared boat. कैन एनीवन टेल मी ओर्ड का मतलब क्या होता है? Paddles. पैडल्स, चप्पू, खुद मारने का. ये नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है, अपने को मेहनत करना पड़ेगा. ठीक है. एंड 8 oared boat टू बी मैन्ड by a crew of 11 members. ठीक है, देखो ध्यान से देखो. टू बी मैन्ड बाय अ क्रू ऑफ 11 members of whom 3 can steer. ठीक है, 3 लोग डायरेक्शन दे सकते हैं, ये चलाएंगे 3 लोग. 3 can steer बोला है, 3 can steer. ठीक है, 8 can row but not steer. ठीक है. In how many ways can the staff be arranged if 2 of them
रो ऑन द लेफ्ट साइड. ठीक है, 2 of them रो ऑन द लेफ्ट साइड. ठीक है, चलो एक काम कर, ये ना सीटिंग अरेंजमेंट है, इसको गोला ही बना देते हैं. सीटिंग अरेंजमेंट है. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. ओके, बोट है, एन 8-oared boat to be manned by a crew of 11 members of whom 3 can steer, 8 can row but not steer. ठीक है, तो 11 लोग हो गए. इन हाउ मेनी वेज द स्टाफ बी अरेंज, और यहाँ पे लिखा है 8-oared boat, तो ऑब्वियसली अगर 3 स्टेयर करें तो 8 लोग बैठ के चप्पू चलाएंगे. इन हाउ मेनी वेज कैन द स्टाफ बी अरेंज इफ 2 of them कैन रो ऑन द लेफ्ट हैंड. तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 लोग रो कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में 2 लोग रो कर सकते हैं. इफ 2 कैन रो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कंडीशन बोला है 2 कैन रो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, बोलो. So 3 that can steer can also row. नहीं ना, 8 कैन रो बट नॉट स्टीयर, 3 कैन स्टीयर. बोलो. 3 लोग सिर्फ स्टीयरिंग करेंगे, 8 लोग रो करेंगे. बताओ. लेफ्ट पे 2 फिक्स. लेफ्ट पे 2 लोग स्टीयर करेंगे, लेफ्ट पे 2 लोग पर्टिकुलर लोग स्टीयर करेंगे. ठीक है, लेफ्ट में 4 जगह है, राइट में 4 जगह है, बराबर. 2 पर्टिकुलर पब्लिक लेफ्ट में रो करेगा, 2 पर्टिकुलर पब्लिक लेफ्ट में रो करेगा, ये कंडीशन दिया है. इफ 2 of them विल रो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट पे और लोगों के से रो करने में. 2 people कैन रो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ये मुझे डेटा दिया है, इंग्लिश में जो लिखा है उस हिसाब से आई वांट टू फॉर्म अ कंडीशन. नाउ यू टेल मी व्हाट शुड बी द कंडीशन. 11 लोग को स्प्लिट कर दिया, 3 और 8 में डिवाइड कर दिया. लेफ्ट में 4 लोग हैं, राइट में 4 लोग हैं, लेफ्ट में 2 लोग स्टीयर करेंगे, सॉरी रो करेंगे, आई एम सॉरी, लेफ्ट वाले साइड में 2 लोग रो करेंगे. तो कितना कंडीशन होगा? देयर इज नो कंडीशन गिवन ऑन राइट, बट 8 सीट मुझे पता है, 3 लोग जो स्टीयर करेंगे वो पता है. टेल मी. 64 plus 63 plus 62 plus 61 plus 60. रॉन्ग. तुम लोग क्वेश्चन ब्रेक नहीं कर रहे. ब्रेक करो. सबसे पहला कंडीशन क्या रहेगा? 3C3 फॉर स्टीयरिंग. सबसे पहले आएगा 3C1 फॉर स्टीयरिंग. चलो 3C1 स्टीयरिंग हो गया. नेक्स्ट सबसे पहला 3C1, क्योंकि 3 लोग स्टीयर कर रहे हैं, बिना स्टीयरिंग बोर्ड कहीं जाएगा नहीं, गलत पहुंच जाएगा, कहीं जाएगा नहीं, तो गलत जाएगा. बोलो. Then 8C2 8C2 for left side. लेफ्ट साइड. नहीं, एक मिनट. बोलो. 8C6. 8C6 इंटू 8C6 नहीं, इंटू 6 फैक्टर. 8. into 6 factorial, wrong. Into 8C6, wrong. 6C4 4 6C4 4 6C4 for right side, wrong. 6C4 for right side. सोचना पड़ेगा. 6C4 जो डेटा दिया है तुम लोग उस पर क्यों नहीं खेल रहा है? 6C4 फ्रॉम राइट साइड कैसा होएगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है. 6C4 भी नहीं. 8 minus 2C R minus 2. 2 पर्टिकुलर पे अपने को पता ही नहीं कौन सा 2 पर्टिकुलर मेंबर है, 1 पर्टिकुलर कुछ मेंबर है ही नहीं, अपने को पता नहीं. Full left side. अपने को पता है लेफ्ट हैंड साइड में 2 लोग चप्पू चलाएंगे. So out of 8 we'll select 2. 8C2. लेफ्ट साइड में 2 लोग चप्पू चलाएंगे. लेफ्ट साइड में 2 लोग चप्पू चलाएंगे. लेफ्ट साइड बोलो. 4C2 बट ये इनकम्प्लीट कंडीशन है. 4C2 तो मतलब हम लोगों को इंक्लूडेड काउंट करेंगे, एक्सक्लूडेड कुछ नहीं काउंट करना है. उन्होंने बोला 2 लोग हैं ना, कौन से 2 लोग हैं? ऑन द लेफ्ट साइड. विच 2 पीपल? एग्जैक्टली. तो इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड आएगा ही नहीं. लेफ्ट साइड कितने लोग हैं? 4. कितने लोग चप्पू चलाएंगे? 4C2 बट दैट इज इनकम्प्लीट कंडीशन. into 2. Very good. 4C2 into 2 factorial. Can you tell me why? A, B, B, A. It can be this, this, or this, this, or it can be this, this. Are you guys understanding?
अब बताओ और क्या आएगा? Right side. On right side there can be all 4 steering, all 3 steering, 2 steering, 1 thing on none steering. राइट हैंड साइड में कहाँ स्टीयरिंग है? Rowing. कहाँ पे रोइंग है? राइट हैंड साइड का कंडीशन ही नहीं कुछ रोइंग का। राइट का कोई कंडीशन दिख रहा है रोइंग का? तो क्यों अज्यूम कर रहे हो? अरे जब बोला है लेफ्ट साइड में 2 लोग रो करेंगे तो तुम लोग राइट साइड में क्यों उनको फोर्स कर रहे हो रो करने को? बोला है क्या राइट हैंड साइड में? वो सीट्स है ना, तो बैठने दो। 64 रॉन्ग। 8C4 8 अच्छा ना 8 कैसा है? बोल बेटा। Rowing की जरूरत थी right side में. बोला है क्या क्वेश्चन में? Right. बस राइट हैंड साइड में बोला है क्या रो का? नहीं बोला। तुम लोग क्यों उनको फोर्स कर रहे हो काम करने को? बोला है कि राइट हैंड साइड में रो करना है, नहीं बोला है तो वी आर नॉट गोइंग टू अज्यूम एनीथिंग। कंडीशन अब बताओ, इस इनटू क्या आएगा? सोचना, काउंटिंग आता है क्या? Why? Because people are rowing on the left side. 6 factorial ways they can sit. 11 लोग थे, Left 2 people can. कितने लोग स्टीयर कर रहे हैं? कितने लोग बच गए? 8। कितने लोग चप्पू चला रहे हैं? कितने लोग बच गए? खत्म। 2 लोग चप्पू चला रहे हैं तो 4C2 × 2 फैक्टोरियल। अभी 2 लोग चप्पू चला रहे हैं तो 6 लोग थोड़ी ताली बजाएंगे, वो लोग जाके बैठेंगे ना। और टेल मी वन थिंग, अगर जो चप्पू चला रहे हो यहाँ पे बैठ गया और यहाँ पे बैठ गया, टेल मी हाउ मेनी वेकेंट सीट्स आर देयर? हाउ मेनी पीपल आर लेफ्ट? दे कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 6 फैक्टोरियल। आई टोल्ड यू ना, डोंट अज्यूम एनीथिंग। एग्जैक्टली व्हाट इज गिवन वी हैव टू फाइंड दैट आउट। हमने क्या क्या अज्यूम किया है क्वेश्चन में कि राइट हैंड साइड में पब्लिक चप्पू चलाएगा, दिया ही नहीं है। 8 can row but not in how many ways the staff can be if 2 of them row on the left hand side. खत्म है कंडीशन। There is no mention of the right hand side. There is no mention of the remaining 2 seats जहाँ पे चप्पू नहीं चलेगा, तो 6 सीट वेकेंट है एंड 3 लोग में से 1 लोग स्टीयर करेंगे, तो तीनों खड़े रहेंगे ऊपर, अपने को फर्क ही नहीं पड़ता, उनको सीट नहीं रहेगा। आई डोंट केयर, बट 3 में से 1 ही चलाएगा। 3C1। वी हैव टू प्रूव व्हाट हैज बीन आस्क्ड। वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव व्हाट इफ दिस हैपन। देयर इज नो व्हाट इफ इन परमुटेशन कॉम्बिनेशन। जो दिया है वो फाइंड करना है। अगर मैंने पूछा है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10 और नॉट, विल यू टेल मी द डिविजिबिलिटी ऑफ 3 ऑल्सो? Of course not. What will you tell me? Divisibility of 10. Why are you giving me unnecessary information if it is not asked? जो पूछा है हमको वही फाइंड आउट करने का। Has everybody understood this? Anybody has any doubt? Please बोल। 3 लोग थे जो स्टेयरिंग कर रहे हैं, उनमें से एक ही चलाया, हाँ, बाकी जो 2 लोग हैं वो भी कुछ नहीं बोला है। They have said that 8 can row but not steer. तो जो रो कर सकते हैं वही बैठेंगे, जो स्टीयर करेंगे वो खड़े रहेंगे। कुछ बोला नहीं उनके बारे में। 8 people are rowing, how many will sit and row? 8। बट क्या बोला? 2 will row on the left hand side. राइट का कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है, खत्म। अपने को लगता है अरे वो बेचारा स्टीयर करे उसका पैर दुखेगा, पूछा है क्या? नहीं पूछा है तो छोड़, पैर दुखने दे उसको, क्या ही फर्क पड़ता है? अपना थोड़ी कोई सगा है, तेरा दोस्त है कोई स्टीयर, नहीं, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव टू एग्जैक्टली प्रूव व्हाट इज आस्क्ड। तुम लोगों ने एक अज्यूम किया ना, 1 फैक्टोरियल या 2 फैक्टोरियल बढ़ जाएगा, आंसर हो। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? नेक्स्ट देखो, अरे बोल। You can shuffle वो steering वाला भी ना, तो उन लोग 3C1। तो फिक्स है वो 3 लोग में से कोई नहीं। हाँ, अभी तो बस में जाएगी। ऐसा तुमने ऐसा देखा है क्या? 3 स्टॉप के बाद कंडक्टर बोलता है अब मैं चलाएगा, फिर ड्राइवर बोलता है फिर तू चला। सबका रोल डिफाइंड है, इसमें भी सबका रोल डिफाइंड है। 3 लोग स्टीयर करेंगे, क्या 8 लोग रो करेंगे। अब शायद बहुत छोटा बोट है, बहुत छोटा बोट, वी डोंट नो ना कितना साइज़ क्या है बोट का, नो आइडिया। कहाँ जा रहा है वो भी नो आइडिया।
मुझे यहाँ से 100 मीटर जाने का रहेगा, 2 लोग स्टेयर करके ही जा सकते, 2 लोग रो करके जा सकते हैं. We don't know how big, how small, we have no idea about it. So we don't know anything. We only have this data available. अपन क्या सोच रहे हैं, अरे 3 दिन का जर्नी है कुछ, we have no idea about anything. And since we have no information, we are going to solve according to the information that is given to us. Has everybody understood this? Next. ऐसे दिखने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे depending on what has been asked and what I have asked. If you see, there will be a lot of different questions. सबका अलग अलग आंसर रहेगा depending on what the data is given. Next. There are n points in a plane. ठीक है, there are n points in a plane of which no 3 points are collinear. I hope everyone knows what is collinear. What is collinear? Same line, lying in a straight line. Find number of straight lines. Find number of straight lines joining these points. Find number of straight lines joining these points. D part. Number of triangles formed. Number of triangles formed. बोलो. Number of triangles formed. बताओ. कितना पॉइंट्स है? n पॉइंट. ना प्लेन. ठीक है, एक जगह समझो ये दिस एंटायर बोर्ड इज अ प्लेन. n पॉइंट्स है. नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो ऐसा कोई भी 3 पॉइंट नहीं है जो कोलिनियर है. फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट्स एंड फॉर्म द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. बताओ. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन? बोलो. 3 points are not collinear, but 2 points can be collinear. 2 पॉइंट्स को कोलिनियर रहेगा ना हमेशा. 2 पॉइंट्स इज ऑलवेज बी कोलिनियर. बराबर बोला. तो रॉन्ग नहीं, परफेक्ट बोला. हाउ डू आई राइट इट? तुझे बोला रॉन्ग नहीं है, परफेक्ट है. n by this 2 c n by 2. n by 2. n by 2 हाफ क्यों कर रहा है? अगर 37 पॉइंट्स रहेगा तो क्या 37/2? सोचो ना, क्या फॉर्म करना है? फर्स्ट कंडीशन में क्या फॉर्म करना है? अरे फर्स्ट कंडीशन में क्या फॉर्म करना है? Number of straight lines. स्ट्रेट लाइंस. NC2. क्यों? लाइन बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए रहता है? 2 points. तो 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. एज ही सेड 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो मेरा आंसर क्या रहेगा? NC2. नेक्स्ट. अब तुम लोगों को हिंट देता हूँ. हिंट देता हूँ. कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, अज्यूम अ सर्कल. कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, अज्यूम अ सर्कल. आई शो यू. देखो, अज्यूम अ सर्कल. आप समझो मैंने सर्कल बना दिया. प्लेन नहीं, ये सेम क्वेश्चन में समझो देयर आर n पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, सेवन्थ पॉइंट, एट पॉइंट. समझो n पॉइंट्स है, n पॉइंट्स. अब मुझे एक बात बताओ, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है ही नहीं. सर्कल हो गया, 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. आई हैव टू फॉर्म अ लाइन. हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन द सर्कल? n. हाउ मेनी आई हैव टू सेलेक्ट? 2. तो NC2. अब अगर ट्राइंगल फॉर्म करना है तो समझो, अगर मैंने ट्राइंगल सेलेक्ट किया, ये देखो, तो ये हो गया, 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 या तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. सो आउट ऑफ n पॉइंट्स यू हैव टू सेलेक्ट एनी 3 पॉइंट्स. तो रिमेंबर दिस, द हिंट इज assume it to be a circle. प्लेन बोले ना, सर्कल अज्यूम कर लो. तो इट गिव्स यू वेरी क्लैरिटी कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो ही नहीं सकते. नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर.
So if you want to form a straight line, it will be NC2. If you form a triangle, NC3. Has everybody understood this? So we are going to try to make it very easy. अब अचानक easy हो जाएगा because अरे सर्कल हो गया. प्लेन में अपने को पता नहीं ना, what we do, ये एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, सर्कल ले लो, क्योंकि बोला है कि no 3 points are collinear. Since no 3 points are collinear, I know for sure that I can assume it to be a circle. Anybody has any doubts here? Has everybody understood? Yes or no? 11th standard. Yes. चलो नेक्स्ट. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अब a polygon has 44 diagonals. A polygon has 44 diagonals. Find the number of sides. The formula is NC2 minus n. Number of diagonals का formula is NC2 minus n. अब माइनस एन क्यों करते हैं देखो. NC2 मतलब कोई भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर ले लो, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, नोनागन, डेक्टागन, जो भी लेना है वो ले लो. ऑब्वियसली डायगोनल बनाने के लिए 2 पॉइंट्स लगेगा, तो NC2 माइनस एन मतलब A to B एंड B to A इज द सेम डायगोनल, तो हर एक डायगोनल भी रिपीट होगा, इसलिए माइनस एन. Did you guys understand this? That is NC2 minus n. If AB is a diagonal, तो BA is also a diagonal. Example दे रहा हूँ. AD is a diagonal, तो DA will also be a diagonal. So number of diagonals should not be repeated. So that's why we do NC2 minus n. Has everybody understood this? Now, क्या बोला है? NC2 minus n is what? Equal to 44. Sorry. हाँ. NC2 minus n is equal to 44 हो जाएगा. ये फॉर्मूला है NC2 minus n, यहाँ पे लिखते हैं. Therefore NC2 minus n is equal to 44. Guys, what is NC2? n factorial upon 2 factorial into n minus 2 factorial minus n is equal to 44. So this will become n minus 1 n minus 2 factorial upon 2 into n minus 2 factorial equal to 44. बराबर माइनस एन भी आएगा ना, माइनस एन इक्वल टू 44. सॉरी. सो दिस विल बिकम n minus 1 minus 2n is equal to 88. So n square minus 3n minus 88 equal to 0. n minus 11 n plus 8 is equal to 0. So n is equal to 11, n is equal to minus 8. क्या रहेगा n का वैल्यू? Why not minus 8? Obviously number of sides cannot be negative. So n is equal to 11 is the answer. Has everybody understood this? So NC2 minus n is the number of diagonals. Any doubts? Pakka? So next question. Computation combination, interesting chapter. 6 parallel lines. 6 parallel lines are to be cut by another 5 parallel lines. Find the number of parallelogram. बताओ. बोलो फ्रेंड्स. Find the number of parallelogram. 6 parallel lines are to be cut by another 5 parallel lines. Find the number of parallelogram. बोलो. 6C2 times 5C2. 6C2 times 5C2. बोलो. 6 parallel lines are to be cut by another 5 parallel lines. Find the number of parallelogram. चलो डायग्राम बनाते हैं. समझो ये है मेरा फर्स्ट पैरेलल लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. ये 6 पैरेलल लाइन और ये है 5. 1 2 3 4 5. बोलो. 6 parallel lines are to be cut by another 5 parallel lines. Find the number of parallelogram.
40 40 20 कैसा? पैराग्राफ 4 से 30 कुछ भी। पैरेललोग्राम 4 साइड रहता है, तो ये भी पैरेललोग्राम रह सकता है, ये चारों भी एक पैरेललोग्राम हो सकता है, ये पूरा भी एक पैरेललोग्राम हो सकता है, ये पूरा भी एक पैरेललोग्राम हो सकता है, अकेला भी हो सकता है। तो बोलो आंसर क्या है? 6c2 times 5c2. 6c2 टाइम्स 5c2 कैसा? Any two parallel lines out of the 6 and then any two parallel lines out of the 5. Out of 6 lines I will choose any 2 and out of 5 times I will choose any 2. This is the answer. पैरेललोग्राम फॉर्म करना है ना, कितना साइड चाहिए का? 4 रहेगा, तो 6 में से ये 6 में से किसी 2 को सेलेक्ट करो। समझो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और इसको सेलेक्ट कर दिया, अब बीच में से इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया। अब देखो ना, दिस विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। डिड यू अंडरस्टैंड? ये तो मैंने स्ट्रेट बनाया, थोड़ा टेढ़ा कर दो तो इट विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो आउट ऑफ 6 लाइन्स, out of 6 horizontal lines I will choose 2 horizontal lines, out of 5 vertical lines I will choose 2 vertical lines, hence the answer is 6c2 into 5c2. Have you guys understood this? Anybody has any doubts here? पक्का? चलो, चेस खेला है लोगों ने? चलो, और एक, बाप रे, चेस। चलो, लास्ट सम फॉर द डे, चेस वाला। इन अ चेस बोर्ड, ठीक है, first part, find number of rectangles. Second part, find number of squares. चेस खेला ना? बताओ, अभी काउंट मत करो। फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स, एक एक स्क्वायर नहीं, 4 को मिला के भी एक स्क्वायर बनता है। बोलो, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, चलो बताओ। नंबर ऑफ रेक्टेंगल 8 by 12, 8 by 8, बोर्ड इज 8 by 8, शाबाश। 64 इज द रॉन्ग आंसर है भाई। बोलो, नंबर ऑफ रेक्टेंगल बताओ यार, नंबर ऑफ रेक्टेंगल तो बहुत ईजी है। 8c2 times 8c1 plus 8c1 times 8c2. क्यों? एक साइड का रेक्टेंगल कैसे बना था? 2. 8c2 टाइम्स 8c2, 8c4 times 8c. 4 कौन सा 3D रेक्टेंगल बना रहा है क्या बेटा? पैरेलल भी बना रहा है तो 8c2 टाइम्स 4c, क्या बोला? 8c2 टाइम्स नहीं, तो बेटा तुमने बोला रॉन्ग है। बोलो, फाइनल नंबर ऑफ रेक्टेंगल। नंबर ऑफ स्क्वायर 8c2 8c2 स्क्वायर, स्क्वायर होना चाहिए। 8c2 8c2 into 8c2 into 8c2, नंबर ऑफ 8c2 is becoming 28 times 28। अब 28 स्क्वायर कितना है बताना तो? क्या नंबर ऑफ रेक्टेंगल? नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसा रहेगा बताओ? आई गिव यू हिंट, प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज करना है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज करना है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट, पैरेलल लाइंस, प्रीवियस कॉन्सेप्ट। चेस बोर्ड तो पता है ना सब लोगों को? सोचो ना जरा, चेस बोर्ड में, चेस बोर्ड बना सकते हैं। चलो, 4c2 times 4c2. ऐसा चेस बोर्ड बना रहे तो 9c 9 lines हो गए। 9 lines. 9 है क्या? पक्का? ठीक है, एक ही साइड लो ना। चेस बोर्ड ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म होगा, तो कितना रहेगा? वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9। So for a rectangle it will become, for a rectangle it will become, बोलो क्या आएगा? 9c
एक मिनट ना गाइस, एक मिनट. So it will become 9c2 times 9c2. 8 लाइन्स नहीं है ये, एक तो अंदर का काउंट कर रहा है. चेस बोर्ड हिस्सा नहीं बनाया तो गिर जाएंगे ना. तो सपोर्ट तो चाहिए, तो तुम लोग का जो भी लास्ट लेवल रहेगा वो गिर जाएगा नीचे, यहाँ पे भी गिर जाएगा. तो 9c2 इंटू 9c2. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? चलो स्क्वायर का आंसर बताओ. टेल मी नंबर ऑफ स्क्वायर्स का आंसर. हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? बोलो. इजी क्वेश्चन है यार, नंबर ऑफ स्क्वायर्स. कैन यू टेल मी नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना रहेगा? अच्छा, कितना स्क्वायर्स देता है इस पे बताओ ना मेरे को. 9c2 into 8c2. 64 ऐसे होगा. हाँ, ये चेस बोर्ड बन गया मेरा. ये बन गया मेरा चेस बोर्ड. बताओ कितना स्क्वायर्स है? बोलो. अरे बहुत इजी. 9c2 into 5c2. पूरा पिक्चर बना है, इतना अच्छा डायग्राम बनाया है नंबर से. देखो ना, सबसे बेसिक स्टार्ट करता है. चलो लेट्स स्प्लिट दिस डाउन. एक एक करके कितना सर्कल्स है, कितना स्क्वायर्स है? कैसा? 8 into If you start with 1, it will become 8 into 8. Okay? 2 बराबर? तो 4 into 4. बराबर. ठीक है. अगर मैंने एक एक लिया तो 8 into 8 हो गया. एक एक लिया तो. अब बताओ नेक्स्ट क्या रहेगा? If the square is two-sided, 2 times 2, then it's 4 into 4. 7 into 2 times 4 into 4 कैसा हो गया? कैसा सर्कल क्या बना रहे तो? अगर मैंने इसको लिया, ये चारों को, ये 2 लिया और ये 2 लिया, तो कितना बन रहा है? ऐसा 7 बनेगा ना. एक ये पूरा 1, 1 2 3 4 ये 1 बन गया. फिर 1 2 3 4 ये 2 बन गया. फिर 1 2 3 4 ये 3 बन गया. फिर 1 2 3 4 ये 4 बन गया. 5 बन गया. 6 बन गया और लास्ट में 7 बन गया. ऐसे भी बनेगा. तो 2 का कितना रहेगा? 7 times 7. 3 का बताओ क्या रहेगा? 6 times 6. 4 का 5 times 5. 5 का 4 times 4. 6 का 3 times 3. 7 का 2 times 2. और 8 का कितना रहेगा? 1 times 1. और ना 8 का 1 time 1 रहेगा. तो इसका आंसर बताओ क्या रहेगा? 2 into 8. 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square up till 8 square. Welcome to sequence and series. बोलो क्या रहा आंसर? आंसर बताओ क्या है? फॉर्मूला क्या है इसका? n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. n का वैल्यू बताओ क्या है? 8 है ना. तो क्या आएगा फिर? 8 into 8 plus 1 into 2 into 8 plus 1 by 6, which will become 8 times 9 times 17 by 6. सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा. Has everybody understood this? You have to understand very clearly. देखो ना, मैंने 3 का ग्रुप बनाते हैं. 3 का 1 2 3 4 ये 3 देखो, ये 3 बन गए, ये 3 बन गए. ऐसे कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 6. वैसे ही 6 बनेगा. योर एग्जैक्ट बोर्ड, चेस बोर्ड इज अ स्क्वायर. लास्ट में मालूम पड़ता ना 8 into 8. 8 रोज और 8 कॉलम एक ही बार आएगा. ये पूरा चेस बोर्ड कैन बी डन इन 1 into 1 वे. दैट इज 1 वे. आपने भी पता है 1 into 1 is 1. तो इट कैन बी ओनली 1 वे. तो यू कैन गो नीचे से ऊपर, यू कैन गो ऊपर से नीचे. एक एक करके क्यों करते हैं? बिकॉज इट हैज़ बीन टोल्ड टू अस दैट इट इज 8 times, दैट इज 64 स्क्वायर्स है. बट 64 स्क्वायर जब तुम लोग 1 1 का लेते हो,
2 का, 3 का, 4 का. It's very important for you to understand this. Has everybody understood this? चलो, we'll stop for the day. We'll continue in the next lecture. चलो.